अमन न्यूज़ लगातार आपकी कवरेज कर रहा है, आप उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं अमन न्यूज़ को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सब हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, चाहे सुबह हो रात हो। मैं देखती हूँ कि आप लोग हमेशा आ जाते हैं हमारे को कवर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और इस कैंपेन में आप लोगों की भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाते। अमन न्यूज़, अमन टाइम्स की तरफ से आप देशकर, DLSR एंड नालसा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बस ये संदेश देता हूँ कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूँ और इतनी बढ़िया टीम हमें मिली हुई है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा श्रेय उनको जाता है। यहाँ घोर तिमिर अंधियारा है, तुम दीपक ही बन जाओ ना इस व्योम गगन भूमंडल पर, तुम सूरज सा बन जाओ ना। A very good evening to the respected dignitaries, ladies and gentlemen. I welcome you all on this momentous occasion of Torch of Justice ceremony to commemorate Azadi Ka Amrit Mahotsav and Nalsa Legal Services Week. Today marks the beginning of the final phase of Pan-India Legal Awareness and Outreach Program of Delhi State Legal Services Authority, which started off on 2nd October 2021 and would conclude on 14th November 2021. To grace this special occasion, we have the honor to have amongst us Honorable Mr. Justice Vipin Sanghi, Judge, High Court of Delhi and Executive Chairperson, Delhi State Legal Services Authority, Learned Principal and District Judges, Learned Principal Judge, Family Court, Learned District Judge, Commercial Court and other judicial officers of Patiala House Court, Learned Member Secretary Nalsa and members of the Bar. I request Shri Kawaljeet Arora, Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority, to present a memento to Honorable Mr. Justice Vipin Sanghi. I would also request Shri Gautam Manan, Special Secretary, Delhi State Legal Services Authority, to present a portrait of Honorable Mr. Justice Vipin Sanghi. To Shri D.K. Sharma, Principal District and Session Judge, Patiala House Court. Thank you, Namrata. State Legal Service Authority, under the great vision and motivation of Honorable Miss Justice D.N. Patel Sanghi, Judge, High Court of Delhi and Executive Chairperson of our authority. Sir, it is really a great pleasure to welcome such a noble personality as our chief guest, who has been the guiding force and also our inspiration of our authority. Justice Sanghi, with an unflinching dedication towards the goal of ensuring access to justice for all, has been the torch bearer of our authority and has been guiding us throughout that how we have to go about this program of Azadi Ka Amrit Mahotsav and how we have to take further this campaign which was given to us by NALSA so as to reach out to each and every person of Delhi. Sir, we are extremely fortunate and privileged to be working under your guidance, sir. I welcome you, sir, on this occasion. Transgenders, we are catering to their problems. We are trying to address their problems and concerns, and we have conducted 455 such programs in the last 30 days, covering number of beneficiaries being 3,52,163. Thank you, sir. कह दो अंधेरे से कहीं और घर बना ले,
कह दो अंधेरे से कहीं और घर बना ले, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। I now request the honorable dignitaries to kindly step down from the dais to hand over the torch of justice to the chairpersons and secretaries of District Legal Services Authorities as a symbol of spreading the flames of justice to every nook and corner of Delhi. Saima Jameel, Secretary District Legal Services Authority. District Legal Services Authority. Legal Services Authority. Madam Secretary, New Delhi District Legal Services Authority. Northeast District Legal Services Authority. Along with this, Nabila Wali, Secretary South District Legal Services Authority. To invite our chief guest of the day, Honorable Mr. Justice Vipin Sanghi, Judge, High Court of Delhi, and Executive Chairperson, Delhi State Legal Services Authority, to deliver special address to the audience on this momentous day. Good evening to all of you. D.K. Sharma ji, Manan sir, Matul Manan, Baba ji, to all the district and sessions judges who are present here today, to all the other judges of the Patiala House Courts, all the secretaries of the DLSs and other office bearers and volunteers, paralegal volunteers, panel lawyers. Good evening to all of you. We have assembled today to mark in a way the launching of the last lap, if I may say, of this 45-day campaign for Pan-India awareness. And so in Delhi, with the program which is to culminate on 14th of November, come out with flying colors. The idea is that we should gain momentum, and during this two-week period, we deliver even more results and achieve even more than what we have done since the 2nd of October. Guiding light for our authority. Your ideals enkindle us in making significant differences in other people's lives. I am sure we will all be inspired by you and be the light that helps others to achieve the path to justice. Many hands make light work. Likewise, today's program could not have been possible without the untiring spirit of Principal District and Session Judge, Patiala House Courts, New Delhi. I request Shri D.K. Sharma, Principal District and Session Judge, Patiala House Court, to propose vote of thanks for today's program. Honorable Mr. Justice Vipin Sanghi, Executive Chairperson, Delhi State Legal Service Authority, Shri R.K. Wadhwa, President, New Delhi Bar Association, Mr. Kavaljeet Arora, Member Secretary, Delhi State Legal Service Authority, Mr. Gautam Manan, Special Secretary, my esteemed colleagues, learned Principal District and Session Judges, members of the Bar, learned judicial officers, and other officials and stakeholders in the legal aid. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध
शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। सो एक मशाल का काम होता है उजियारा फैलाना। जी जी। और एक ये सिंबल है मशाल कि जिस तरह से मशाल जहाँ भी जाती है अंधकार में उजियारा फैलाती है, उसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन DSLSA के जो कार्यकर्ता हैं ये सब मुस्तैदी से पूरे दिल्ली में जा रहे हैं, पहले भी जा रहे हैं और भी जाएं, और ये अंधकार जो है इसे दूर करें, लोगों को उनके लीगल राइट्स के बारे में अवगत कराएं, उन्हें बताएं। तो जैसे एक मशाल का काम होता है अंधियारा मिटाने का, उसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये काम कर रही है, ये अवेयरनेस फैला रही है पूरे। जैसे सर DLSA रात दिन काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ सारे जजेस मेहनत कर रही हैं रात दिन। बिल्कुल। सुबह देख रहे हैं ना शाम देख रहे हैं, क्या पूरे भारत में ये मिशन लागू है इस तरह से मेहनत? बिल्कुल बिल्कुल, सब तरफ हो रही है। और इसमें बहुत बड़ा एक उसका कारण ये है कि हमारे जो नेशनल जो चेयरपर्सन हैं जस्टिस ललित, वो बहुत इंटरेस्ट इस बारे में ले रहे हैं, बार बार मीटिंग्स करते हैं, बार बार उनके सुझाव आते हैं हमें कि भी किस तरह से आप आगे बढ़िए। और क्योंकि वो मीटिंग लेते हैं और पूछते हैं भी आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उससे हम सब भी बिल्कुल चौकन्ने हैं और हमें भी एक मोटिवेशन है कि हम अच्छे से अच्छा करके अच्छे से वो अपने राइट्स पूरे कर सकें। सर 29 तारीख से लेकर के आज तक अमन न्यूज़, अमन टाइम्स लगातार कवरेज DLSA कर रहा है, और मैंने देखा कि सर रोडों पे जज काफ़ी दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सर आपको इससे कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये बहुत कमेंडेबल है, बहुत ही काबिल तारीफ़ चीज़ है। और मैं खुद देख रहा हूँ कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, जुडिशल ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स, काउंसिल्स, ये सब बहुत ही चार्ज्ड हैं, बहुत ही मोटिवेटेड हैं और बड़ी पूरी शिद्दत के साथ में इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। सर क्या ये कंटिन्यू चलती रहेगी मुहिम? बिल्कुल चलती रहेगी। और ये पैन इंडिया जो कैंपेन है जो 14 नवंबर को ख़त्म होगी, इसके बाद भी ये चलती रहेगी। पहले भी चलती रही है, पर इस दौरान ये ज़्यादा इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है और इस तरह का प्रोग्राम हम और भी चलाते रहेंगे। DSLSA के जितने भी प्रोग्राम होते हैं पहले भी हम करते रहे हैं, अभी भी करते रहेंगे। और अभी तो इस कैंपेन में हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, पर हम इसके साथ में एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसे हम जेल्स में हम वर्कशॉप्स लगा रहे हैं, जिससे वोकेशनल ट्रेनिंग हो सके। जो कैदी हैं जब वो बाहर आते हैं तो उनके पास में कोई ना कोई वोकेशन हो, वो एम्पावर्ड हों अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, वो किसी किस्म का अभाव ना फेस करें। तो इस काम में भी लगे हुए हैं और भी लीगल एम्पावरमेंट के काम जो हैं वो सब किए जा रहे हैं। सर जैसे हम देख रहे हैं मेंबर सेक्रेटरी है और टोटल जजेस इसमें मेहनत कर रहे हैं और पब्लिक बहुत जुड़ रही है सर। सर इससे आगे के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं जो क्या नाम है जज और आपके साथ पब्लिक जुड़े? तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, कुछ जैसे कार्टून फिल्म्स वगैरह भी बना रहे हैं, एनिमेशन फिल्म्स जो होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे भी काफ़ी इसका प्रचार हो रहा है, क्योंकि आजकल वो बहुत लोग उसमें जुड़ते हैं। तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो इन सब चीज़ों, इन ज़रियों, इन साधनों से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की कोशिश लगी हुई है। सर अमन न्यूज़, अमन टाइम्स की तरफ से आप देश के DLSA एंड नालसा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बस ये संदेश देता हूँ कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूँ और इतनी बढ़िया टीम हमें मिली हुई है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा श्रेय उनको जाता है।
उसके मैम, ये जो 29 से आपका प्रोग्राम लगातार चल रहा है अवेयरनेस का और 14 नवंबर तक होने वाला है, तो उसके आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे या फिर कोई और प्लान है आप लोग का? ये जो कैंपेन हमने शुरू करी है ये अब लगातार चलती रहेगी। जैसे कि हमने प्रोग्राम के टाइम पे भी बताया कि अब ये मशाल जो जली है अब ये हर कोने तक जब तक दिल्ली के नहीं पहुंचेगी ये बुझेगी नहीं। तो 14 नवंबर को नालसा का कैंपेन ख़त्म हो रहा है, बट नालसा विल कीप ऑन इट्स कैंपेन टू रीच आउट टू द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। मैम, मैंने देखा है कि आप लगातार रोड पे भी दौड़ रहे हैं, नाइट डे भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम लोग इतने लोगों से मिले, ऐसी ऐसी जगहें गए जहाँ हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इस फेस्टिविटीज़ के टाइम पे हम लोगों के बीच में हैं, उनके साथ उनके सुख दुख बांट रहे हैं। मैम, पेंटिंग्स का भी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। पेंटिंग्स का एग्जीबिशन यहाँ लगाया गया आज और कल। हमने पेंटर्स को बुलाया जो लीगल एड पे पेंटिंग करें, जो भी वो सोचते हैं, जो भी उनके थॉट है, और इन सारी चीज़ों की एग्जीबिशन लगाई जाएगी डिफरेंट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में टू रीच आउट टू पीपल, उनको बताने के लिए कि लीगल एड सिर्फ मुफ्त में कानूनी सलाह या सहायता नहीं है, इट इज़ मच ब्रॉडर देन दैट। मैम, नालसा के लिए और जनता के लिए, गरीब जनता के लिए और अमन न्यूज के क्या लिए संदेश क्या देना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहता चाहूँगी कि बस उम्मीद का दामन थाम के रखिए, उम्मीद मत छोड़िए। हम सब आपके लिए खड़े हुए हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ आवाज़ उठाने की। ये मत समझो कि आप लोग अकेले हो, नालसा हमेशा आपके साथ है। मैम, अमन न्यूज लगातार आपकी कवरेज कर रहा है, आप उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं अमन न्यूज़ को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सब हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, चाहे सुबह हो रात हो। मैं देखती हूँ कि आप लोग हमेशा आ जाते हैं हमारे को कवर करने के लिए, सो थैंक यू सो मच। और इस कैंपेन में आप लोगों की भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाते।